السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 18 جنوری 2025 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 17 رجب 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ 76ویں یوم جمہوریہ کی تیاری زور و شوروں سے چل رہی ہے۔ 76ویں یوم جمہوریہ کے لیے دفاعی اہلکاروں کی پریڈ ریہرسل کرتویہ پتھ پر جاری ہے۔ اس موقع پر مہا ریجمنٹ کی 15ویں بٹالین کے کیپٹن امان کمار سنگھ کہتے ہیں، مہا ریجمنٹ آل انڈیا ہمہ گیر تصویر پر مبنی پہلی ریجمنٹ تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فوجی دستے شامل ہیں۔ ہندوستان کے تمام خطوں اور تمام ذاتوں کے لیے ہمارے پاس میجر راما سوامی پرمیشورن کے لیے ایک پرمویر چکر ہے۔ جموں کشمیر رائفلز کے میجر بکر مجید سنگھ کہتے ہیں، میں اس دستے کی قیادت کر رہا ہوں۔ JNK رائفلز کی ایک الگ اور قابل فخر تاریخ ہے۔ آج کے اس خبر نامے کو نورانی لباس کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ نورانی لباس کی اینڈ آف سیزن سیل صرف آپ کے لیے، پارٹی ویئر ہو، فیسٹیو ایتھنک ویئر یا پھر ٹریڈیشنل ریگولر ویئر، سب کچھ 50% تک ڈسکاؤنٹ پر دستیاب ہے۔ 15 دسمبر سے جاری ہے ہماری اینڈ آف سیزن سیل۔ نورانی لباس، نوابی شہر کا نوابی نذرانہ، شیروانی، پٹھانی اور کرتوں کا خزانہ۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے مطابق دہلی کے 70 حلقوں کے اسمبلی انتخابات کے لیے کل 1521 پرچہ نامزدگی داخل کیے گئے ہیں، جو کہ 5 فروری کو ہونے والے ہیں۔ دہلی کے چیف الیکٹرل آفیسر کے دفتر نے بتایا کہ دہلی اسمبلی کی 70 نشستوں کے لیے 981 امیدواروں نے یہ کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ ان کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال آج ہفتے کو ہو رہی ہے اور کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 20 جنوری مقرر کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے مطابق کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 17 جنوری کو کل 680 کاغذات نامزدگی داخل کیے گئے تھے۔ ECI کے مطابق نئی دہلی اسمبلی حلقے میں سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی داخل کیے گئے ہیں اور اس سیٹ کے لیے کل 29 امیدواروں نے 40 کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نئی دہلی سیٹ سے دہلی کے 2 سابق وزراء اعلیٰ کے بیٹوں یعنی BJP کے پرویش ورما اور کانگریس کے سندیپ دکشت شیلا دکشت کے بیٹے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس دوران کستوربا نگر اسمبلی حلقے میں پرچہ نامزدگی کی کم از کم تعداد داخل کی گئی، جس میں کل 6 امیدواروں نے کل 9 پرچہ نامزدگی داخل کیے ہیں۔ ریاست اتر پردیش کے سنبھل پولیس سپرنٹینڈنٹ KK بشنوئی نے بتایا کہ سنبھل ضلع میں 24 نومبر کو شاہی جامع مسجد کے سروے کے دوران پتھراؤ کے واقعے میں 2 اور ملزمین کو آج گرفتار کر لیا گیا۔ سنبھل کے SSP نے آج ہفتے کی صبح بتایا کہ گرفتار ملزمین کی شناخت گلسرائے کے محسن اور ہندوپورہ کے حسنین کے طور پر ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک 59 لوگوں کو جیل بھیجا گیا ہے، جن میں سے 19 کو تھانہ نقاسا علاقے سے اور 40 کوتوالی سنبھل علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ SSP بشنوئی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز خوگو سرائے کے محسن اور ہندو پورے کے رہنے والے حسنین کو تھانہ نقاسا کے علاقے سے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ تھانہ نقاسا کے علاقے میں کل 24 غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیے گئے۔ 55 مزید غیر ضمانتی وارنٹ جلد ہی جاری کیے جائیں گے۔ SSP نے یہ بات بتائی۔ SSP نے سنبھل واقعے کے بارے میں ایک نوجوان کے مولانا سے مبینہ طور پر بات کرنے والے وائرل ویڈیو پر بھی رد عمل ظاہر کیا۔ وشو ہندو پریشد کے پروگرام میں مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی اور انہیں انتہائی تذیق آمیز انداز میں کٹ ملا کہہ کر پکارنے والے الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شیکھر یادو جی نے اس بیان پر سپریم کورٹ کا کالعجم بھی 1 ماہ قبل طلب کر چکا ہے۔ ان کو نہ کوئی پشیمانی ہے اور نہ ہی انہوں نے معافی مانگی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو دیے گئے تحریری جواب میں جسٹس شیکھر یادو نے کہا ہے کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہے، جو ان کی نظر میں کسی بھی عدالتی اصول یا اخلاقیات کے منافی ہے۔ وہ حضرت کے 17 دسمبر کو جسٹس یادو اس معاملے میں کالعجم میں پیش ہوئے تھے۔ اس کے بعد اسی ماہ کے اوائل میں چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھنسالی سے اس معاملے میں تازہ رپورٹ مانگی تھی۔ اتر پردیش کے مسلم اکثریتی علاقوں میں مندروں کی بازیابی کے نام پر ماحول خراب کرنے کی کوششوں کے بیچ بھگوا عناصر نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قریب واقع ایک مندر کو بنیاد بنا کر انتظامیہ کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم پیش کیا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قریب شمشاد مارکیٹ میں واقع اس مندر کو ہندوؤں کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کرنی سینا نے مارچ کرنے کی کوشش کی، مگر پولیس نے انہیں روک دیا۔ واضح ہے کہ اتر پردیش میں اس طرح کے حالات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی جگہ پر مندر ہونے کا دعویٰ پیش کرتے ہوئے اس کی کھدائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے دہلی انتخابات کے لیے اپنے انتخابی منشور کا ایک حصہ جاری کیا، جس میں وہ مفت کی ریوڑیاں شامل ہیں، جن پر وزیراعظم نریندر مودی نے تنقید کی تھی۔ زعفرانی پارٹی نے دہلی حکومت کی طرف سے چلائی جانے والی عوامی بہبود کی اسکیموں کو جاری رکھنے اور انہیں بدعنوانی سے پاک کرنے کا وعدہ کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں کو رسوئی گیس سلنڈر میں 500 کی سبسڈی، ہولی دیوالی کے دوران 1 سلنڈر مفت، 5 لاکھ کے ہیلتھ انشورنس اور اٹل
कैंटीन में गरीबों के लिए 5 रुपए में पेट भर खाना देने का वादा किया है। इंतखाबी मंशूर पर तनकीद करते हुए केजरीवाल ने इसे आम आदमी पार्टी की नकल करार दिया और कहा कि ये इस बात का सबूत है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी मुफ्त की रेवड़ियों पर तनकीद करने के मामले में गलत थे। मुल्क में बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है और ये कितने बड़े बहरान में तब्दील हो गई है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि हिंदुस्तान में हर 10 में से 8 अफराद मुलाजमत तलाश कर रहे हैं। 55% लोगों का कहना है कि नए साल में मुलाजमत तलाश करना मजीद मुश्किल हो गया है। मशहूर जॉब नेटवर्किंग पोर्टल लिंक्डइन के जरिए की गई एक तहकीक में ये इंकशाफ हुआ है। इस बात यह है कि हिंदुस्तान के 72% HR प्रोफेशनल्स का मानना है कि हुनरमंद मुलाजमीन को तलाश करना अब पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल भी मुलाजमत तलाश करने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। हालांकि 37% लोग कह रहे हैं कि वो 2025 में नौकरी तलाश नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद 58% लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल मुलाजमत का बाजार बेहतर होगा और वो नई मुलाजमत हासिल कर सकेंगे। बॉलीवुड स्टार और नवाब ऑफ पटौदी सैफ अली खान पर कातिलाना हमला करने के मामले में पुलिस ने एक मुश्तबा मुलजिम को हिरासत में ले लिया है, जो पेशे से बढ़ई है और इसका नाम अफसरी वारिस अली सलमानी है। इस दौरान लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक सैफ की तबीयत में हस्ब तौक़्क़े बेहतर आ रही है, जिसकी वजह से जुम्मे को इन्हें ICU से निकाल कर एक खुसूसी कमरे में मुंतकिल कर दिया गया, जहां इन्हें आइंदा 2 से 3 दिन रहना होगा। मालूम हुआ है कि पुलिस ने वारिस अली सलमानी को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करने की तस्दीक नहीं की और ना ही ये तफसीलात फराहम की कि किस जगह से और किस तरह हिरासत में लिया गया। ताहम इसकी अहलिया ने मीडिया से बात करते हुए जो बयान दिया है, इसके मुताबिक इनके शौहर को सैफ अली खान की रिहायशी इमारत में बुलाकर वहाँ से पुलिस ने हिरासत में लिया और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। इसकी अहलिया ने मीडिया से गुफ्तगू की और दावा किया कि इनके शौहर बेकसूर हैं और इनका सैफ पर हमले से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने बताया कि वारदात के बाद तफ्तीश के लिए इनके शौहर को जब सैफ अली खान की रिहाइश पर बुलाया गया था, इस बात को 24 घंटों से ज़्यादा वक्फा गुजर चुका है। इत्तलात है कि सलमानी को रिहा कर दिया गया है क्योंकि इसका वारदात से कोई बराह रास्त कनेक्शन नहीं मिला। जब इसकी अहलिया इससे मुलाकात करने पुलिस स्टेशन गई थी तो इन्हें तसल्ली दी गई कि इनके शौहर बिल्कुल महफूज हैं और इन्हें खाना वगैरह भी दिया गया है। पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इस खातून ने कहा कि अफसरी वारिस अली सलमानी मेरे शौहर हैं। मेरे शौहर को फ़ोन आया था सैफ अली खान के मैनेजर का कि फर्नीचर का काम करना था। इस खातून ने मजीद कहा कि इनके शौहर ने 5 कारीगरों को लेकर सैफ अली खान के घर पर काम शुरू किया था और इस जगह पर इनका काम का पहला दिन था। इस खातून ने अपना नाम बताए बगैर कहा कि इनके शौहर काम ख़त्म करके सीधे अपने घर आ गए थे और CCTV कैमरे में ये बात रिकॉर्ड हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंदुत्व ग्रुपों VHP और बजरंग दल के हामियों ने त्रिशूल की शुरुआत की तकरीब में हिंदू राष्ट्र से अपनी वफादारी का हलफ लिया है। VHP और बजरंग दल के ज़ेर एहतमाम त्रिशूल आगाज़ तकरीब के एक वीडियो में शुरुका तकरीब के दौरान तकसीम किए गए छोटे त्रिशूल को थामे हलफ लेते हुए देखा गया। इन्हें कसम खाते हुए सुना गया, हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, हमारी ज़िंदगी का मकसद हिंदुस्तान को अंदरूनी और बैरूनी ताकतों से बचाना है। विश्व हिंदू परिषद, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे ग्रुपों के ज़ेर एहतमाम त्रिशूल दीक्षा प्रोग्रामों का सिलसिला पहले ही अक़लियती बरादरियों, खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाते हुए इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी, नफरत अंगेज़ तकरीर और तफरुक़ा अंगेज़ प्रोपोगंडे का मुजाहरा कर चुके हैं। दारुल देवबंद के मोहतरम मुफ्ती अबू कासिम नोमानी बनारसी ने तस्वीर की ममानियत बयान करते हुए कहा कि जानदारों की तस्वीर बनाना इस्लाम में नाजायज़ है, हम सबको इससे बचना चाहिए। दारुल देवबंद ने इसी सबब इदारे के अंदर ख्वातीन के दाखिले पर पाबंदी आयद की थी। अगर ये सिलसिला इदारे के अहाते में मनाही के बावजूद जारी रहा तो इदारा एक मरतबा फिर सख्त इक़दाम करने पर मजबूर होगा। दारुल देवबंद की मस्जिद ख़दीम में खुतबे जुम्मे से कबल अपने बयानात के सिलसिले की कड़ी के तहत मोहतरम इदारा मुफ्ती अबू कासिम नोमानी बनारसी ने कुरान व हदीस की रोशनी में जानदारों की तस्वीर बनाने के नुकसानात पर रोशनी डाली और इसे गुनाह कबीरा करार देते हुए कहा कि इस्लाम में इसकी सख्त ममानियत है। लेकिन आज बड़े अफसोस का मुकाम है, सबके हाथ में मोबाइल हैं और तस्वीरें और वीडियोस बनाने में मसरूफ़ हैं। हमारे मजहबी प्रोग्राम और दीनी मजालिस भी इससे महफूज नहीं है और वहाँ भी तस्वीर और वीडियोस बनाकर इन्हें वायरल करने का आम रिवाज बन चुका है। हमें इसमें एहतियात रखनी चाहिए और उलमा को इस सिलसिले में मुआशरे को बेदारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें अवाम व ख़ास सब मुलविस हैं और तकलीफ़ की बात यह है कि इसके जायज़ होने की दलीलें भी पेश की जाती है। मुफ्ती अबू कासिम नोमानी ने शादी ब्याह की तकारीब के अंदर वीडियो बनाए जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि शादियों में ख्वातीन की वीडियोस बनाई जाती है और फिर इसको महरम व गैर महरम सब मिलकर देखते हैं, जो बहुत बड़ा गुनाह है, जिससे इज्तनाब करने के साथ साथ मुआशरे को भी इससे बचाने की ज़रूरत है।
नाज़रीन, दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती साहब के ख्यालात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बैरूनी दौरे के पहले दिन सिंगापुर में एक मुआहदे पर दस्तखत के बाद उम्मीद की जा रही है कि सिंगापुर और डॉस का दौरा कामयाब साबित होगा और रियासत में सरमायाकारी के सिलसिले में नामवर इदारों से मुआहदे तय पाएंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 2 रोज़ा दौरे पर सिंगापुर पहुंचे और पहले ही दिन सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एजुकेशन के साथ मुआहदे तय पाए, जिसके तहत तेलंगाना की स्किल यूनिवर्सिटी की तरक्की में ताउन किया जाएगा। सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एजुकेशन ने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में तेलंगाना हुकूमत से मुमकिन ताउन से इत्तेफाक कर लिया है। तेलंगाना राइजिंग के तहत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर-ए-क़यादत आला सतही वफ़द ने अपना पहला इजलास इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एजुकेशन के अहदेदारों के साथ मुनक़्क़िद किया। वज़ीर आला के हमरा वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज जयेश रंजन, मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन विष्णु वर्धन, चीफ मिनिस्टर के स्पेशल सेक्रेटरी अजीत रेड्डी और यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर SS सुब्बाराव मौजूद थे। तेलंगाना के वफ़द ने सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एजुकेशन कैंपस का दौरा किया और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के बारे में मालूमात हासिल की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि 26 जनवरी से मुस्तहिक खानदानों को नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। तेलंगाना में 90 लाख राशन कार्ड मौजूद है, जिनके तहत 2 करोड़ 81 लाख अफराद मौजूद हैं। प्रजा पालाना के तहत हुकूमत मुकम्मल शफाफियत से राशन कार्ड जारी करेगी। उन्होंने वादे किया कि पुराने राशन कार्ड मनसूख नहीं किए जाएंगे। नए राशन कार्ड्स के लिए मौसूला दरख्वास्तों की बुनियाद पर सर्वे किया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस ने जिन 6 जमानतों का वादा किया था, इन पर अमल का आगाज हो चुका है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड के जरिए फलाही स्कीमात से इस्तेफादे की सहूलत रहेगी और 20 जनवरी से सर्वे का आगाज होगा। हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हालिया तबकाती सर्वे की बुनियाद पर राशन कार्ड से महरूम खानदानों की तफसीलात जिला कलेक्टर्स और कमिश्नर GHMC को रवाना की जाएगी। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि RSS के नजरियात की बुनियाद पर वो BJP के खिलाफ हैं। जिस तरह समंदर के 2 किनारे एक नहीं हो सकते, इसी तरह BJP से इत्तेहाद नहीं हो सकता। वो NDA और इंडिया इत्तेहाद दोनों के खिलाफ हैं। इंडिया इत्तेहाद में शामिल जमातें 6 माह पहले साथ थे, अब एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं। पार्लिमानी इंतखाबात में मजलिस ने दिल्ली में एक नशिस्त पर भी मुकाबला नहीं किया। इसके बावजूद BJP सारी नशिस्तों पर कामयाब हो गई। क्या इंडिया इत्तेहाद BJP से अंदरूनी इत्तेहाद कर चुका था? ओवैसी ने यह सवाल किया। महाराष्ट्र में BJP को किसने कामयाब करवाया? बाज़ जमातें सेकुलरिज्म के चौधरी की तरह थे। वो ये चाहते हैं कि सिर्फ वही सेकुलरिज्म का झंडा उठाएंगे और दूसरों पर इल्ज़ामात आयद करेंगे। BJP और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही नज़रियात पर अमल करते हैं और एक ही बात करते हैं। ओवैसी ने कहा कि दोनों जमातों में कोई फ़र्क नहीं। उन्होंने कहा कि हम अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो मुसलमान सबसे कमज़ोर हैं। ऐसा करना कोई गुनाह नहीं है। मुसलमानों के हक़ की लड़ाई की बात करना कोई सियासी बयानबाजी नहीं। इसकी तायीद में सरकारी आदत व शुमार, सरकारी रिपोर्ट्स, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की तफसीलात वगैरह मौजूद है। शहर हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके अफजलगंज में गुज़िश्ता रोज़ हुई फायरिंग के वाक़े की तहक़ीक़ात में पुलिस ने तेज़ी पैदा कर दी है। 10 खुसूसी टीमों के साथ हैदराबाद के अलावा रायपुर, बिहार के बशमूल बाज़ दीगर मुश्तबा इलाकों में पुलिस मुलजिमीन की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने इस फायरिंग वाक़े में बिहार की अमित कुमार टोली के मुलविस होने का पता चलाया है। पुलिस इस बात का भी पता चला रही है कि ये लुटेरे बिदर में वारदात अंजाम देने के बाद किस तरह हैदराबाद पहुंचे। पुलिस इस टोली के बिहार फरार होने के जाविये से भी तहकीकात कर रही है। ज़राए के मुताबिक इस टोली का असल सरगना अमित कुमार है। इसके खिलाफ बिहार में डकैती और चोरी के कई मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस के CCS टास्क फोर्स और लॉ एंड ऑर्डर के शोबेजात मुलजिमीन की तलाश जारी रखे हुए हैं। बिहार पुलिस से हैदराबाद सिटी पुलिस ने राब्ता किया है। सिटी पुलिस के आला अहदेदारों ने अमित कुमार की जराइम की वारदातों की तफसीलात भी बिहार पुलिस से हासिल की। CCTV फुटेज के तज्जिए के बाद पुलिस को पता चला है कि यह मुलजिमीन 3 व्हीलर में टैंकमेंट की सिमत रवाना हुए। पुलिस टैंकमेंट से इनकी नकल व हरकत का पता चलाने की कोशिश कर रही है। ये मुश्तबा अफराद समझा जाता है कि सिकंदराबाद की सिमत फरार हो गए। पुलिस ने रेलवे और बस स्टेशन के अतराफ गाड़ियों की तलाशी शुरू की ताकि इनको फरार होने से रोका जा सके। ताहम पुलिस अहदेदारों ने शुबा जाहिर किया कि कल रात 2 बजे तक तलाशी मुहिम अंजाम दी गई, ताहम मुलजिमीन का पता नहीं चल सका। शुबा है कि वो शहर से बाहर जा चुके हैं। इस दौरान बिदर पुलिस की एक टीम हैदराबाद पहुंची ताकि इस मामले की तहकीकात की जाए। शुबा जाहिर किया है कि मुलजिमीन बरा रायपुर छत्तीसगढ़ फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने बताया कि अफजलगंज फायरिंग वाक़े में देसी साख्ता असला का इस्तेमाल किया गया और हमले में जख्मी जहांगीर की हालत मुस्तकिम है। तेलंगाना हुकूमत मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के कामों का आइंदा माह आगाज़ करने की तैयारी कर रही है। हुकूमत के मंसूबे के मुताबिक 2030 तक मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि आइंदा माह फरवरी में बापू घाट से प्रोजेक्ट के कामों के आगाज़ की तैयारी करें।
इब्तदाई कामों के सिलसिले में प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तफसीलात मरकजी हुकूमत को रवाना की जा चुकी है। वर्ल्ड बैंक से मूसी रिवर प्रोजेक्ट के लिए 4000 करोड़ के खर्च की इजराई के इम्कानात रोशन हैं। प्रोजेक्ट के आगाज के लिए बापू घाट के करीब वाक़ महकमा दिफा की अराजी हवाले करने से मरकजी हुकूमत ने इत्तेफाक कर लिया है। दिफाई अराजी के हुसूल के सबब मूसी रिवर प्रोजेक्ट के कामों के आगाज की राह हमवार हो चुकी है। तेलंगाना हुकूमत की इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत मौसूला दरख्वास्तों में 18,32,000 दरख्वास्त गुजारों को स्कीम का अहल करार दिया गया है। बताया जा रहा है कि मजीद 8 लाख दरख्वास्तों की जांच का काम बाकी है। सरकारी ज़राए के मुताबिक बाकी दरख्वास्तों में मजीद 1 ta 2 लाख इस्तेफादा कुनिंदगान की तादाद में इजाफा हो सकता है। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तेलंगाना में इस्तेफादा कुनिंदगान की तादाद 20 लाख तक पहुँच जाएगी। दरख्वास्तों की जाँच के लिए हुकूमत ने अहदेदारों के जरिए सर्वे का एहतमाम किया है। इंदिरम्मा हाउसिंग के लिए रियासत भर में 80 लाख दरख्वास्तें दाखिल की गई, जिनमें से 72 लाख दरख्वास्तों की जांच मुकम्मिल हो चुकी है। सर्वे के मुताबिक 18,32,000 दरख्वास्त गुजार मुस्तहिक पाए गए। हुकूमत ने जिला कलेक्टर्स को रात निगरानी की हिदायत दी ताकि इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब में बेकायदगियां ना हो। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का आगाज इतवार 19 जनवरी को शाम 4 बजे फ्री बूट कैंप के साथ अमल में लाया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तेफादा हासिल करें। कोई भी ग्रुप के अफराद इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन, चैट GPT, जेमिनी, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जाएगा। इतवार शाम 4 बजे इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर में फ्री बूट कैंप का आगाज अमल में लाया जा रहा है। आज के इस कंपटीशन के दौर में AI से मरबूत कोर्सेज सीखना हर नौजवान और तालीम याफ्ता अफराद के लिए ज़रूरी है। इसीलिए इदारे सियासत की इस पहल से आप सब ज़रूर फ़ायदा उठाइए। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978। इदारे सियासत के इस कोर्स से इस्तेफादा हासिल करते हुए हर माह कई तलबा और तालिबात मुल्क व बैरून मुल्क में माकूल मुशायरों पर बरसर रोजगार हैं, क्योंकि पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट के मुल्क व बैरून मुल्क बिलखुसूस अमेरिका, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी मांग चल रही है और साथ ही साथ गल्फ कंट्रीज़ में भी इसकी डिमांड में इजाफा देखा जा रहा है।